Good morning everyone, welcome back. Clause 17 of section 2 of CGST Act 2017, business definition. Business definition is very important definition in GST law. Why this definition is an important definition in GST law? Very simple. If business is there, GST is going to be leviable. इसलिए बिजनेस डेफिनेशन जीएसटी लॉ में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. In detail we are going to discuss in next chapter. Next chapter is all about taxable event in GST law supply. तो उस समय हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. For the time being, remember, if business is there, GST is going to become applicable. So that's why this definition is very important. Now business definition C, business includes. तो इस डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड टर्म यूज किया गया है. मैंने आप लोगों को पहले समझाया था, वापस बता रहा हूं. इन केस ऑफ एनी डेफिनेशन इन विच इंक्लूड टर्म हैज बीन यूज या इंक्लूडिंग टर्म यूज किया गया है, या किसी प्रोविजन के अंदर इंक्लूड या इंक्लूडिंग टर्म यूज किया गया है, इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? वेदर इट इज जीएसटी लॉ, इनकम टैक्स लॉ, कंपनी लॉ, सिविल और क्रिमिनल लॉ, हम इंक्लूड या इंक्लूडिंग टर्म को कैसे इंटरप्रेट करेंगे? बेसिकली व्हाट एवर इज रिटन इन दैट डेफिनेशन ऑफ प्रोविजन दैट इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट. क्या मतलब हुआ इसका? दैट इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट का बेसिकली हम लोग ये जो भी देखने वाले हैं, यू कैन से, अगर सिंपल तरीके से हम समझने की कोशिश करें कि ये एग्जाम्पल्स है बिजनेस को समझाने के लिए. इसके अलावा कोई बिजनेसमैन जो काफी स्मार्ट है नया टर्म इजाद कर देता है, लेकिन अगर उसने टर्म नया इजाद किया, लेकिन जो वो बिजनेस कर रहा है, मतलब जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है या ट्रांजेक्शन कर रहा है, उसका नेचर बिजनेस की तरह है, so that is going to be included in business. So basically this is not exhaustive list. In any definition, again I am repeating, in any definition of provision, if includes or including term has been used, then remember it is not exhaustive list. अगर कोई सिमिलर स्टैंडिंग का कोई दूसरा नेचर की भी एक्टिविटी ये सब आएगी, so that is also going to be included. तो यहां गवर्नमेंट ने काफी स्मार्टली, बिकॉज इफ बिजनेस इज देयर जीएसटी इज देयर, इन्होंने अच्छी खासी लंबी चौड़ी डेफिनेशन दी. अगर आप देखोगे तो इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, उसके बाद भी इन्होंने इंक्लूड टर्म यूज किया है. सो दे प्लेड स्मार्टली. ओके, ये बुक में भी लिखा हुआ कि इंक्लूड टर्म अगर यूज किया जाता है तो उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे. कीप दिस इन माइंड, नॉट ओनली in GST law, irrespective of any law. Okay, so business includes sub clause A. इसको कैसे पढ़ेंगे? सब क्लोज ए. ये क्या है? क्लोज 17. किसका क्लोज 17 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2017. ये तो आप लोग मालूम है. इसको कैसे पढ़ेंगे? सब क्लोज ए ऑफ क्लोज 17 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2017. ओके, पहले मैं क्या करूंगा, एक प्लेन रीडिंग करूंगा बिजनेस डेफिनेशन की, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल दी सब क्लोजेस. सब क्लोज ए ऑफ क्लोज 17 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2017. एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, वेदर और नॉट इट इज फॉर ए पेक्यूनियरी बेनिफिट. Sub clause B of clause 17 of section 2 of CGST Act 2017. Any activity or transaction in connection with or incidental or ancillary to sub clause A. Sub clause C. Any activity or transaction in the nature of sub clause A, whether or not there is a volume, frequency, continuity or regularity of such transaction. Sub clause D. Supply or acquisition of goods including capital goods and services in connection with commencement or closure of business. Subclause E,
provision by a club, association, society or any such body for a subscription or any other consideration of the facilities or benefit to its members. Subclause F, admission for a consideration of person to any premises. Subclause G, services supplied by a person as the holder of an office which has been accepted by him in the course of furtherance of his trade, profession or vocation. Subclause H, activities of a race club including by way of totally setter or a license to bookmaker or activities of a licensed bookmaker in such club. And finally, subclause I, any activity or transaction undertaken by the central government, a state government or any local authority in which they are engaged as public authorities. तो अगर देखें अच्छी खासी ये लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। उन्होंने बोला यार बिजनेसमैन काफी स्मार्ट होते हैं, तो हम लोग तो उनसे ज्यादा ओवर स्मार्ट है, पॉलिटिशियन थिंक लाइक दिस एंड आईएएस ऑफिसर भी। तो वो बोले कि ठीक है, अगर उन्होंने दिमाग लगाया तो एक काम करो, हम लोग इसको इंक्लूसिव डेफिनेशन कर देते। तो लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, फिर भी इतनी ब्रॉड डेफिनेशन देने के बाद भी इन्होंने इसको इंक्लूसिव डेफिनेशन कर दी। अब सबसे पहले ये डेफिनेशन इतनी लंबी चौड़ी क्यों है, इतनी ब्रॉड क्यों है? आपको मालूम है, हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जीएसटी के अंदर जो सेंट्रल टैक्सेज है या स्टेट जो टैक्सेज है वो सबजुम्ड हुए। तो जितने भी जो प्रीवियस ये टैक्स लो थे उसके अंदर बिजनेस की डेफिनेशन अलग अलग दी गई थी। अब जब ये बिजनेस की डेफिनेशन बना रहे थे जीएसटी के अंदर, तो इन्होंने बोला यार अब सब जितने भी प्रीवियस टैक्स लो है उसके अंदर बिजनेस की डेफिनेशन अलग अलग है, तो सबको इसके अंदर शामिल कर लो। तो इसलिए ये अच्छी खासी लंबी चौड़ी ब्रॉड मैनर में ये डेफिनेशन है। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑन ऑल द सब क्लोजेज ऑफ बिजनेस डेफिनेशन so that you can understand in detail business definition. Subclause A say any trade, commerce, manufacture, profession, vocation, adventure, wager or any other similar activity whether or not it is for a pecuniary benefit. तो पहले हम लोग ये टर्म समझते हैं ट्रेड। ट्रेड नॉर्मली हम लोग डेली लाइफ में कब यूज करते हैं? ट्रेडिंग, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि जीएसटी के अंदर तो गुड्स के साथ में सर्विसेज भी शामिल है और बोथ, तो गुड्स और सर्विसेज और बोथ उसकी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मीन बाइंग एंड सेलिंग। नॉर्मली हम डेली लाइफ में जो ट्रेड टर्म यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं? बाइंग एंड सेलिंग। ओके, सो ट्रेड इज बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग। कॉमर्स, अब कॉमर्स और ट्रेड को काफी बार एक दूसरे के जगह यूज किया जाता है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम लोग अगर डिक्शनरी मीनिंग और दूसरे जो सोर्सेज है उससे उस मीनिंग से इंटरप्रेट करने की कोशिश करें कि भाई कॉमर्स का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, तो कॉमर्स रेफर टू ए लार्जर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड दो देयर इज नो स्पेसिफिक स्केल व्हेन ए ट्रेड इज टर्म्ड एज कॉमर्स। तो ट्रेड अपन जो नॉर्मल एक बेचारा छोटा कस्टमर है वो खरीदता है उसको भी ट्रेड बोल देते हैं कि भाई वो सेलर के पास गया और खरीदा, तो उसको ट्रेडिंग बोलते हैं, करेक्ट। लेकिन कॉमर्स क्या होता है? लार्जर वॉल्यूम, जैसे एक कंपनी दूसरे कंपनी से खरीदती है। अब ये कब ट्रेड कॉमर्स बन जाएगा, ऐसा कोई स्केल डिफाइन है क्या? नहीं। तो कॉमर्स आप बोल सकते हो कि लार्जर वॉल्यूम। ओके, मैन्युफैक्चर बहुत ही सिंपल है, आपने रॉ मटेरियल डाला, एक नया प्रोडक्ट आया जिसको नए नाम से जाना जाता है। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। प्रोफेशन, प्रोफेशन बेसिकली आपने कुछ एजुकेशन ली है, प्रोफेशनल जैसे क्वालिफिकेशन, सीए की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री, डॉक्टर की डिग्री, ठीक है, तो वो प्रोफेशन। फिर आप वो फील्ड चूज करते हो, जैसे आपने सीए की डिग्री ली और प्रैक्टिस में आ गए, आपने डॉक्टर की डिग्री ली और आप पेशेंट को ट्रीट करने लगे, तो आपने वो प्रोफेशन चूज किया। तो बेसिकली यू नीड हायर क्वालिफिकेशन। वोकेशन, मेरी कुछ हॉबी है, मेरे को वो करना पसंद है, पेंटिंग करना मेरे को पसंद है, ठीक है, खेलना पसंद है, आई एम गुड इन स्पोर्ट, तो वो क्या होता है? वोकेशन। जो आपकी पसंद है, जो आपकी हॉबी है, आप उसको चूज करते हो। एडवेंचर,
एडवेंचर, रिस्की काम करना, करते हो ना। अगर आप जैसे वाटर किंगडम में जाते हो, ठीक है, तो पाइप से नीचे जंप लगाते हो वाटर के अंदर, ठीक है, एडवेंचर है, करेक्ट। रोलर कोस्टर राइड, एडवेंचर। लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, बिजनेस की डेफिनेशन। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से एडवेंचर क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए आप कोई रिसर्च एक्टिविटी अंडरटेक करते हो, तो यू आर गोइंग टू अंडरटेक वन रिसर्च एक्टिविटी। अब उसके अंदर आपको मालूम है कि भैया अगर ये मेरी रिसर्च फेल हो गई तो देयर गोइंग टू बी बिग लॉस, ठीक है, काफी बड़े लॉस हो सकते हैं मेरे को, इट इज रिस्की। लेकिन अगर आपका रिसर्च सक्सेसफुल हो गया तो आपको अच्छा खासा गेन भी होने वाला है, ठीक है। तो एडवेंचर की जो एक्टिविटीज होती है वो वेजर, सट्टा, हालांकि इंडिया में बोलते हैं सट्टा इलीगल, लेकिन आजकल आईपीएल मैचेज में देखो तो आजकल तो ऐप बन गए हैं और आईपीएल ज्यादातर देखने वाले कौन है, जो सट्टा खेलते हैं वो हो गया आजकल, ठीक है। तो रियल ऑडियंस कम होती जा रही है। तो बेसिकली जो बेटिंग होती है वो क्या हो गया, वेजर हो गया, करेक्ट। बेटिंग मतलब आप पैसा लगाते हो फिर आपको मिलेगा, लॉटरी, ये सब क्या है, वेजर, ओके। और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, ठीक है, वेदर और नॉट इट इज फॉर ए पिक्यूनरी बेनिफिट। पिक्यूनरी बेनिफिट यानी कि प्रॉफिट मोटिव, यानी जो आप कोई एक्टिविटी अंडरटेक करते हो किस मोटिव से करते हो, प्रॉफिट मोटिव के साथ करते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं पिक्यूनरी बेनिफिट। लेकिन डेफिनेशन में क्या लिखा, वेदर और नॉट इट इज फॉर ए पिक्यूनरी बेनिफिट, यानी प्रॉफिट मोटिव होना जरूरी नहीं है। कोई एक्टिविटी आप प्रॉफिट मोटिव से नहीं करते हो फिर भी वो बिजनेस हो सकती है। सो सब क्लोज ए से एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, वेदर और नॉट इट इज फॉर ए पेक्यूनरी बेनिफिट। तो आपने ट्रेडिंग की, ओके, कॉमर्शियल एक्टिविटी की, मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोफेशन कोई अडेप्ट किया, मतलब जो एक्टिविटी आप मान लो डॉक्टरी का काम करते हो या इंजीनियरिंग का काम करते हो, ओके, एडवेंचर, वेजर या कोई दूसरा भी, ओके, लेकिन आपका प्रॉफिट मोटिव है कि नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये आप करते हो देन इट इज बिजनेस, देन इट इज बिजनेस। सो प्रॉफिट मोटिव बिकम इररिलेवेंट हियर। नॉर्मली आप ट्रेडिंग, कॉमर्शियल जो एक्टिविटी वो क्यों अंडरटेक करते हो, योर मोटिव में भी प्रॉफिट। लेकिन ये डेफिनेशन अगर हम देखें, सब क्लोज ए देखें, तो बेसिकली प्रॉफिट मोटिव बिकम इररिलेवेंट। अगर आप ये एक्टिविटी अंडरटेक करते हो देन इट इज बिजनेस, ओके। सो दिस इज सब क्लोज ए। सब क्लोज बी, सब क्लोज बी से एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन विथ और इंसिडेंटल और एंसिलरी टू सब क्लोज ए, यानी इंसिडेंटल और एंसिलरी टू दिस सब क्लोज ए। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हो, मान लीजिए आपकी सीए की ऑफिस है, ठीक है, आपने एक सीए की ऑफिस बना के रखी, आप प्रैक्टिस में हो, तो ऑफिस के अंदर सेटअप क्या, आपका केबिन अंदर है, बाहर रिसेप्शन है, बाहर क्या है, रिसेप्शन है, ठीक है। तो आपने एक अच्छी खासी रिसेप्शनिस्ट बिठाई हुई है, मैं आता हूं आपसे एडवाइस लेने के लिए, आप मीटिंग में बिजी हो, आप मीटिंग में बिजी हो, तो आपकी रिसेप्शनिस्ट बोलती कि सर आप सोफे पे बैठिए, आपके लिए चाय मंगाऊं, कॉफी मंगाऊं, क्या मंगाऊं, ठीक है सर अभी बिजी है, थोड़ी देर में आपको बुलाएंगे। मेरा ठीक है, मैं सोफे पे बैठता हूं, मान लीजिए मैंने चाय का बोला, अब मेरे सामने एक टेबल है, उसके ऊपर मैगजीन्स रखी हुई है, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, ठीक है, बिजनेस मैगजीन, न्यूज़पेपर ये सब रखे हुए हैं। तो मैं अपना टाइम पास करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैगजीन पढ़ता हूँ, ठीक है। ये क्लाइंट को बेसिकली वो बोर नहीं हो, इसलिए सीए की ऑफिस ने, जो आपकी ऑफिस है, आपने ये सुविधा दी हुई है अपने क्लाइंट को कि भाई जब आप रिसेप्शन के अंदर वेट करोगे तो उस समय आप बोर नहीं हो, इसलिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, मैगजीन पढ़ सकते हो। अब थोड़े समय बाद न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर तो चलो एक दिन के बाद दूसरे दिन पुराना हो जाता है, मैगजीन भी 10-12 दिन या जो फोर्टनाइटली बेसिस पे जो मैगजीन होती है, मंथली बेसिस पे, वो 15-20 दिन में पुरानी हो जाती है। तो अब
आप क्या करोगे? आप उसको रद्दी वाले को बुला के बेच दोगे। तो ये क्या आपका बिजनेस है क्या? नहीं। आपका प्रोफेशन क्या है? क्योंकि आप सीए हो तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये प्रोफेशन है, तो वो आपका बिजनेस है। लेकिन जो ये आपने मैगजीन्स ली या फिर जो न्यूज़पेपर लिए, बाद में रद्दी वाले को बुला के आपने बेच दिए, क्या ये आपका बिजनेस है? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस इट इज गोइंग टू बी बिजनेस। यानी कि जो आपने बेचा उसके बदले में रद्दी वाले ने आपको जो पैसे दिए, जीएसटी बिकम एप्लीकेबल ऑन दैट। एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन विथ और इंसिडेंटल एंसिलरी टू सब क्लोज ए। सब क्लोज ए। बैंक लोन देती है। बैंक लोन देती है। तो बैंक ने मान लीजिए कार लोन दिया, आपने या मैंने कार लोन लिया। तो बैंक का काम क्या है? डिपॉजिट लेना, ठीक है, डिपॉजिटर से, और उस पैसे को यूज करना किस रूप में? लोन देना, जिससे कि उनको इंटरेस्ट मिले। ठीक है, तो वो 6% डिपॉजिटर को देगी और 8% पे मान लो लोन देगी, तो 2% उनके बचता है, 1% उनका खर्चा होगा, तो 1% वो कमाएगी। तो उन्होंने लोन दिया। अब जब कार लोन दिया तो नॉर्मली कार के ऊपर जो गुड्स, जो कार होगी वो बैंक के नाम भी रहेगी। मतलब आप बेसिकली क्या होगा कि अब अगर आपने लोन नहीं चुकता किया तो बैंक को अधिकार होगा कि वो कार जब्त करके सेल कर दे। करेक्ट, यही होता ना। अब बैंक का बिजनेस है क्या कि कार को सेल करना? नहीं। बैंक का बिजनेस है कार को सेल करना? नहीं है ना बिजनेस। लेकिन मान लीजिए आपने या मैंने लोन के अंदर जब ईएमआई चुकाने की बारी तो हमने डिफॉल्ट किया, तो वो क्या करेंगे? कार को जब्त कर लेंगे और उसको सेल कर देंगे। जबकि बैंक का काम क्या है? लोन देना। लेकिन इधर वो कार सेल के अंदर इन्वॉल्व हो गए, उनकी मजबूरी हो गई बेचारों की। तो दिस इज एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन विथ और इंसिडेंटल एंसिलरी टू सब क्लोज ए। तो बेसिकली ये क्या होगा? जब वो कार सेल करेगा बैंक, तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगी। इंसिडेंटल एंसिलरी है नहीं है? है ना? ठीक है। सो जीएसटी इज गोइंग टू बिकम एप्लीकेबल। दिस इज ऑल्सो बिजनेस। सब क्लोज सी। एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन द नेचर ऑफ सब क्लोज ए। अब ये भी सब क्लोज ए का रेफरेंस दे रहा। वेदर और नॉट देयर इज वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजेक्शन। अब हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल जो बिजनेसमैन जो बिजनेस करता है या बिजनेस करने के लिए जो एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन अंडरटेक करता है, उसमें नॉर्मली फ्रीक्वेंसी होती है, रेगुलरिटी होती है। करेक्ट। लेकिन काफी बार क्या होता है कि वो वन ऑफ केसेज होते हैं, तो क्या वो बिजनेस होगा? तो सब क्लोज सी बोलता है कि यस, वो भी बिजनेस होगा, चाहे वॉल्यूम हो नहीं हो, फ्रीक्वेंसी हो नहीं हो, कंटिन्यूटी हो नहीं हो, रेगुलरिटी हो नहीं हो। अब नॉर्मली क्या है, स्टूडेंट को सीधा डायरेक्टली, मेरे को भी नहीं समझ में आता जब तक एग्जाम्पल नहीं दिया जाए। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए। मैरी कॉम नाम सुना है? क्रिकेटर का नाम सुनते हो आप लोग? बॉक्सर जो दूसरे स्पोर्ट्स है उसके में मतलब बंदों की नॉलेज बहुत कम होती, बंदियों दोनों की नॉलेज कम होती। तो मैरी कॉम वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सिंग के अंदर, उसका बेसिकली काम क्या है? बॉक्सिंग लड़ना। करेक्ट। अब वो वर्ल्ड चैंपियन है, तो एक डायरेक्टर गया और मैरी कॉम मूवी भी बनी हुई, आपको मालूम होगा। वो मैरी कॉम के पास जाता है, बोलता कि बॉस, मैरी कॉम मैम, मैं आपकी लाइफ के ऊपर एक मूवी बनाना चाहता हूँ। ठीक है। मैरी कॉम सेड यस, ओके, गुड एनफ। तो आप मेरे को डिटेल में अपनी बायोग्राफी बताइए और उसको मेरे को राइट दे दीजिए अपनी बायोग्राफी का, सो आई कैन मेक वन मूवी ऑन योर लाइफ। मैरी कॉम थॉट, ओके, once in a lifetime opportunity. So she said yes. So she got paid for this. Let's say 2 crore rupees. I don't know what exactly she got, but I am just taking one example to explain you.
So she got 2 crore rupees. Now whether Mary Kom is doing this regularly, the answer is no. ठीक है, वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगी भाई, बायोग्राफी दो और पैसे ले लो. तो वेदर or not there is a volume, frequency, continuity or regularity of such transaction, Mary Kom whatever she is receiving, that is going to be the business. दूसरा एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, सुनना अच्छी तरह पे, आपका एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है. वो क्या करता है, बेसिकली उसकी एक ग्रोसरी की शॉप है, सीए की पढ़ाई करता है, ग्रोसरी की भी शॉप है, आर्टिकलशिप कंप्लीट कर लिया. सीए तो वो क्लियर नहीं कर पाया, मतलब फाइनल अभी तक एग्जाम दे रहा, लेकिन ग्रोसरी की शॉप जो वो चला रहा है वो बहुत मस्त चल रही है. अच्छे खासे एरिया में उसकी सेल है, उस एरिया के अंदर मोस्ट ऑफ द कस्टमर नो हिम और उसी को ऑर्डर देते हैं. काफी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो, ठीक है. तो करीबन 10-12 किलोमीटर में उसका जो रेडियस है उसमें अच्छा खासा बिजनेस है. तो वो मेरा स्टूडेंट रहा हुआ है, तो मेरे को भी एक नया बिजनेस करना था, तो मेरे को ऐसे ही मालूम चलता है, तो मैं उसके पास जाता हूँ कि यार तेरे तो चर्चे जगह जगह है, तो मेरे को भी इन्वेस्टमेंट करना, मेरे को भी ये बिजनेस खोलना है. अब मैं तो इसके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, तो मेरी हेल्प कर देना. तो बोलता सर मैं आपकी हेल्प तो कर दूंगा, मैं आपकी इज्जत करता हूँ काफ़ी, लेकिन ठीक है अब इसके अंदर मेरे को टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको कंसल्टेंसी देनी पड़ेगी. जैसे आप जीएसटी कंसल्टेंसी देते हो, वैसे मेरे को अब आपको कंसल्टेंसी देनी पड़ेगी कि भाई किराने की दुकान, प्रोविजन स्टोर कैसे लगाओगे, क्या क्या अप्रोच आप फॉलो करोगे जिससे कि आपको प्रॉफिट होगा, कस्टमर से कैसे डील करना है, कब डिस्काउंट देना है, कब नहीं देना, किस आइटम पे देना, तो ये सब मैं आपको दूंगा. इसमें मेरा टाइम इन्वेस्ट होगा, इसमें मेरा टाइम इन्वेस्ट होगा. तो एक काम करते हैं, मैं ये आपको कंसल्टेंसी दूंगा, बट आई एम गोइंग टू चार्ज फॉर दिस. ओके, फेयर एनफ. So he's going to charge for this. I am going to pay to him. Okay? तो ये क्या है, क्या उसका ये रेगुलर काम है, क्या उसका काम तो किराने की दुकान है, उसमें वो सेल करता है, प्रोविजन स्टोर है जो, लेकिन वो कंसल्टेंसी दे रहा है, अपॉर्चुनिटी मिली, उसने उसको एनकेस कर दिया. तो देयर इज नो वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी, बट इट इज गोइंग टू बी बिजनेस. ओके. Sub clause D, supply or acquisition of goods including capital goods and services in connection with commencement or closure of business. तो supply और acquisition of goods including capital goods की definition हम बाद में देखेंगे, ठीक है, क्या capital goods है. ओके, तो अगर commencement और closure of business के लिए कोई supply या acquisition of goods है, that is also going to be business. नॉर्मली बंदा क्या बहाना बना लेता है कि भैया अभी तक तो मैंने बिजनेस चालू नहीं किया. जैसे अभी आप मान लीजिए बिजनेस कमेंस करने वाले हो, उसके लिए कुछ गुड्स या सर्विसेज सब आप लेते हो, तो बोलता है कि भाई सर हमने अभी तो बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, तो इट इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी. लेकिन इस सब क्लोज डी की वजह से तो कमेंस में या क्लोजर ऑफ बिजनेस के लिए भी अगर कोई सप्लाई या एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स, दैट इज गोइंग टू बी बिजनेस ओनली इंक्लूडिंग सर्विसेज. सब क्लोज ई, provision by a club, association, society or any such body for a subscription or any other consideration of the facilities or benefit to its member. आपने देखा होगा क्लब, एसोसिएशन, ठीक है. तो क्लब क्या बनता है कि भाई मेंबर्स की बेनिफिट के लिए, कि हम लोग एक क्लब फॉर्म करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं और अपने जो मेंबर्स बनेंगे, जो मेंबर्स सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको बेनिफिट देंगे. ओके, वेरियस क्लब होते हैं, आपने सिटीज के अंदर भी देखा होगा, और यूनियंस भी होती है. तो वो सब, चाहे वो क्लब हो, एसोसिएशन हो या सोसाइटी हो, जैसे सोसाइटी होती है, हाउसिंग सोसाइटी होती है,
आप बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर, बॉम्बे सब के अंदर देखोगे सोसाइटीज होती है, करेक्ट, वो मेंटेनेंस लेती है मंथली बेसिस पे, ठीक है। उनका मोटिव प्रॉफिट होता है कि नहीं, वो मंथली मेंटेनेंस लेती है, जिससे कि जो कॉमन एरिया मेंटेन करना है, जैसे लिफ्ट सब साफ सफाई ये सब, तो मेंटेनेंस होता है ना मंथली बेसिस पे, जो फ्लैट ओनर को पे करना पड़ता है, तो वो सोसाइटी फॉर्म होती है। उनका मोटिव बिजनेस होता है कि नहीं होता, लेकिन इस डेफिनेशन की वजह से, इस सब क्लोज की वजह से बेसिकली क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी फॉर ए सब्सक्रिप्शन, चाहे वो मेंटेनेंस चार्जेस है और एनी अदर कंसिडरेशन ऑफ द फैसिलिटी और बेनिफिट टू इट्स मेंबर, इज गोइंग टू बी बिजनेस। Then subclause F, admission for a consideration of person to any premises। इमेजिका में आप जाते हो, एडलेब इमेजिका, टिकट लेनी पड़ती है ना, वाटर किंगडम में जाते हो टिकट लेनी पड़ती है, एसएल में जाते हो टिकट लेनी पड़ती है, अगर किसी मॉल में जाते हो तो अभी तक तो फ्री है अधिकतर मॉल, लेकिन मान लो वो टिकट लेते हैं, क्यों टिकट लेते हैं, या कोई म्यूजियम में जाते हो तो आपको एंट्री करनी है, एडमिशन टू एनी प्रीमाइसेस, किसी भी प्रीमाइसेस की एडमिशन के लिए आपको पे करना पड़ता है, तो वो बिजनेस है, चाहे वो म्यूजियम हो, एडलेब इमेजिका हो या कुछ अलग भी हो, मतलब कोई भी जो प्रीमाइसेस है उसके अंदर एडमिशन के लिए आप कंसिडरेशन पे करते हो, तो वो म्यूजियम ये सब वाले क्या कर रहे हैं, बिजनेस। ओके। सब क्लोज जी, सर्विसेज सप्लाइड बाय ए पर्सन as the holder of an office which has been accepted by him in the course or furtherance of his trade, profession or vocation। Again we are going to take CA example। आपका अच्छा खासा नाम है इंडिया के अंदर, इतनी जबरदस्त आपकी सीए की प्रैक्टिस चल रही है, आप वेल नोन जीएसटी के एक्सपर्ट हो, ठीक है, वेल नोन जीएसटी के एक्सपर्ट हो। एक कंपनी आती है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, वो बोलती है सर आपका इतना अच्छा खासा नाम है, यू हैव वेरी गुड गुडविल, व्हाई डोंट यू ज्वाइन आवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो वो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ऑफर देती है वो कंपनी, या कोई दूसरी कंपनी आती है वो भी आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ऑफर देती है। अब आपका प्रोफेशन क्या है, सीए इन प्रैक्टिस, आप जीएसटी के नंबर 1 कंसल्टेंट हो इन इंडिया, बट बिकॉज ऑफ दैट यू बेसिकली क्रिएटेड वन गुडविल, आपका नाम है, उस नाम की वजह से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि एक कंपनी आती है आपके पास, मल्टीनेशनल कंपनी, और बोलती है कि यू बिकम डायरेक्टर एंड वी आर गोइंग टू पे यू सिटिंग फीस। So now your business is basically GST consultancy, लेकिन आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बन रहे हो। So services supplied by a person is the holder of an office which has been accepted by him in the course of furtherance of his trade, profession or vocation, so this is going to be business। Now in the course of furtherance of his trade, profession or vocation या business, हम लोग अभी नेक्स्ट जो डेफिनेशन उसमें आपको समझाऊंगा कि इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस होता क्या है, विच एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल्स। ओके, तो ये बेसिकली आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपका नाम है, अपने प्रोफेशन की वजह से, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने की अपॉर्चुनिटी मिली, तो वो क्या होगा, वो भी बिजनेस होगा। जैसे एक एडवोकेट है, उसको भी मान लीजिए आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के अंदर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अब वो रिप्रेजेंट करता है कोर्ट के अंदर, लेकिन क्योंकि उसका अच्छा खासा नाम है तो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के अंदर उसको अपॉर्चुनिटी मिली। जैसे इसका रियल लाइफ भी एग्जांपल लेंगे तो रिलायंस, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी में मतलब जब डिस्प्यूट चल रहा था कि भाई एसेट, जो उनकी एसेट है, जो संपत्ति है, उसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो आपको याद होगा जो आईसीआईसी बैंक के चेयरमैन होते थे कामत, उनको अपॉइंट किया गया, उनका नाम था, ठीक है, इसलिए उनको अपॉइंट किया, उन्होंने उनकी मदद की, मीडिएट करके बोला कि भाई ये कंपनी इसको मिलेगी, ये कंपनी अनिल अंबानी को मिलेगी, ये कंपनी मुकेश अंबानी को मिलेगी। तो ये सब क्या है, बिजनेस। ओके, देन सब क्लोज एच, एक्टिविटीज ऑफ ए रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटली सेटर और लाइसेंस टू बुक मेकर और एक्टिविटीज ऑफ ए लाइसेंस बुक मेकर इन सच क्लब। रेस क्लब, हॉर्स रेस, 1 रुपया लगाओ 10 रुपए मिलता है, ठीक है, तो वो भी बिजनेस है। अब बाय वे ऑफ टोटली सेटर, ये टोटली सेटर क्या होता है, आपने देखा होगा कि कैसीनो होता है, उसके अंदर एक वो व्हील होती है जिसमें नंबर्स लिखे हुए रहते हैं, तो अगर आपने किसी नंबर पे बेटिंग की, मान लीजिए 10 रुपए लगाए, वो आपका नंबर निकल गया, तो शायद 9 टाइम्स या 10 टाइम वो जो भी देते हैं, आई डोंट हैव एनी आइडिया, तो वो भी बिजनेस है, ठीक है। तो हॉर्स रेस या टोटली सेटर, यानी वो जो व्हील होती है उसमें नंबर लिखे रहते हैं, आपने नंबर डालते हैं, फिर वो
एक है ना बॉल घूमती है, अगर वो आपके नंबर पे आ जाती तो यू आर गोइंग टू गेट मल्टीपल टाइम्स वाट एवर यू पुट द बेट ऑफ। तो 10 रुपीज डालोगे तो 90 या 100 जो भी वो देते हैं। ओके, तो दिस इज आल्सो बिजनेस। देन सब क्लोज आई, any activity or transaction undertaken by the central government, state government or any local authority in which they are engaged as public authorities। तो जो गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल अथॉरिटी मतलब म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, वो कोई एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन करती है पब्लिक अथॉरिटीज के रूप में, वो भी बिजनेस होगा। हालांकि उनका मोटिव बिजनेस नहीं है, लेकिन फिर भी वो बिजनेस होगा। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन अंडरटेक करती है, जैसे म्युनिसिपैलिटी साफ सफाई सिटी की, तो वो भी बिजनेस है। क्या है? बिजनेस है। ओके, है कि नहीं है बिजनेस? तो दिस इज बिजनेस डेफिनेशन। अच्छी खासी इन्होंने ब्रॉड मैनर में बिजनेस को डिफाइन किया है। उसके बाद भी एज वी डिस्कस अर्लियर, इट इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। ओके, अब आप लोगों को क्या करना है, ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को बिजनेस डेफिनेशन अच्छी तरह से वापस देखनी है, जिसमें मैंने ये एग्जांपल्स भी दे के रखे हैं। ओके, और मेरी कमेंट्री भी है, ठीक है, ब्लू कलर के अंदर। यू नीड टू गो थ्रू दिस so that it become permanent. Remember, business definition is very, very important definition in GST law, and business definition is inclusive definition.